Welcome back, beta. How are you? Again, I am back here to, to discuss power sharing. You must have seen part 1 and part 2 of power sharing, and I hope, I am sure कि जो concept है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. Everything must be clear. There must be clear picture in your minds. जो हमने किया अब तक, whatever we have done, आपको समझ आ गया होगा. So today we will start last topic of this chapter, that is important topic, that is forms of power sharing. So we'll start that, beta. The idea of power sharing has emerged. बेटा स्क्रीन पे देखो प्लीज, स्क्रीन पे देखते जाओ बेटा. It has emerged in opposition to the notions of undivided political power. What does it mean? कि जो opposition थी, they also divided. They wanted, their demand क्या थी? मतलब सब कोई चाहता था कि हमें भी शेयर मिले. पावर शेयरिंग मीनिंग होता है शेयरिंग ऑफ पावर. वो कहते थे भी हमें भी कुछ शेयर मिले पावर का, हमारे पास भी कुछ पावर आए हमारे हाथ में. जो ऑपोजिशन थी, so powers, they were concentrated in one hand, या few individuals you can say. For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons. So when power it is in the hands of one person or group of persons, we call it, क्या बन जाएगी? Which form of government बेटा? Dictatorship और monarchical form of government, जहाँ एक राजा होता है पूरी प्रजा के ऊपर, he rules over them. So it was felt that if the power to decide is dispersed, फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions, उनको लगता था हम डिस्पर्स भी, तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हारे पास ये पावर है, तो उनको लगता था हम डिसीजंस नहीं ले सकते, क्विक डिसीजंस नहीं होंगी, and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. So ये थिंकिंग लोगों की चेंज होगी ना, पीपल की, सिटीजन्स की, जब when democracy it originated. What is democracy? क्या है बेटा? It is government for the people, of the people and by the people. कैसे बेटा? हम लोग वोट देते हैं, common people they vote, they choose their representatives, and some of those representatives, कुछ मतलब उसमें से जो हैं वो they form the government. उनमें से ही जिनको हमने इलेक्ट किया, जो जीत गए, अवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने इलेक्ट किया ना, कैसे उनको जिताया? हमने वोट देके. So that is why it is known as democracy is government for the people, of the people and by the people. ठीक है, हम लोगों की वजह से डेमोक्रेसी बनती है. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. How people, they are the source of all political power? They have got authority to represent through voting, which to choose their representatives. मैंने आपको भी बताया, वोट करके हम अपने representatives चुन सकते हैं. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist. देखो ये भी होता है, एक ये फीचर है बेटा डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी accommodates diversities. डेमोक्रेसी accommodates diversity. वो फीचर यहाँ आ गया बेटा. मैंने आपको बताया था कि इसमें hidden features हैं. Everyone has a voice in the shaping of public opinion. Everyone has a voice in the shaping of public policies. So therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पावर जो है, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या डिमांड करती है कि पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. It should not be concentrated in the hands of few. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. Let us look at some of the most common arrangements that we have or we will come across. Power is shared among different organs of the government. I told you which are the organs: legislature, executive and judiciary. ये organs हैं. Let us call these horizontal. Horizontal distribution of power. Horizontal बेटा same level पे, ऐसे same level, this line like this, same level पे. Legislature, executive and judiciary मैंने कल आपको समझाए थे ये भी.
So let us call this horizontal distribution of powers because it allows different organs of government. So तीनों organs बेटा they are placed at the same level, एक ही level पे हैं तीनों, and they have their own jurisdiction, sphere of power कि हमने इस jurisdiction में काम करना है ना, same level पे काम करना है हमने, and this way no organ misuses its powers. So this results in a balance of power. So balance of power रहता है, हर organ को पता है कि मेरी ये duty है, मेरे ये functions हैं, मेरे ये powers हैं. So balance of power is, let us, last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise powers, they are responsible to the parliament or state assemblies. Ministers बेटा जो कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शंस जीत गए, उनमें से जो लीडर चुनते हैं, मेजॉरिटी पार्टी जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं, वो अपना एक लीडर चुनते हैं और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. फिर वो प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ अदर मिनिस्टर्स अलॉट करता है अलग अलग लोगों को अलग अलग पोर्टफोलियोज या मिनिस्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं. और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिविल सर्वेंट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. Judiciary का क्या काम है? बाकी organs पे नजर रखना कि जो भी वो काम कर रहे हैं, they are doing it according to the laws. So this arrangement is called a system of checks and balances, and they keep an eye कि जो भी legislature laws बना रहा है, मतलब they are not against the constitution. अगर उनको लगता है तो they can declare that law as null and void. So this was horizontal, same level पे बेटा, ठीक है. अब आता है vertical, ऐसे ऊपर से नीचे. Power can be shared among government at different levels. देखो powers they are divided between central government and state governments. अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे. There are three tier system है कि नीचे हमारे पास local self government भी होती है for the entire country. Central government is for the entire country and governments at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is called federal government. जो पूरी country, such a general government, पूरी general government country के लिए, that is known as federal government. तो federal government बेटा क्या होती है? You know what, when powers they are divided between center and the state, independently manage करते हैं अपना administration. So the governments as the provincial or regional level are called by different names. देखो central government होगी, national government होगी, पूरी country की एक government. फिर उसके नीचे हमारी states हैं, उसको हम state government बोल लेंगे, उसको हम regional government बोल लेंगे, उसको हम provincial government बोल लेंगे. ठीक है बेटे. In India, we call them state governments. This system is not followed in all the countries. There are many countries where there are no provincial or state governments. But in these countries like us, where there are different levels of government, the constitution lays down the powers of government levels, powers of different levels of government. So constitution में I told you it is a book. Everything is mentioned in the book called constitution. किस तरह हमारा देश चलना है, सब कुछ उसमें mention होता है. And the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ये है. अगर नीचे की बात करें थर्ड टायर, दैट इज लोकल गवर्नमेंट के ये पावर है. So there is federal division of power in India. The same principle can be extended to levels of government lower than the state governments. State government के lower, मैंने आपको पहले भी local self government आ गई बेटा, उसके नीचे हमारे पास local self government as municipalities and पंचायत. ये भी पंचायती राज जो सुना होगा बेटा आपने क्लास 6 में शायद पढ़ा होगा कि 3 टायर सिस्टम है. सो लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. सो वर्टिकल बेटा इस तरह की लाइन, हॉरिजॉन्टल इस दिस वे यू कैन रिमेंबर इट. और स्क्रीन पे देखो बेटा, इस तरह आप इसको याद करोगे डिवीजन. सो वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो आज बेटा इतना ही करते हैं. 2 forms of power sharing we have done. Just go through them. फिर इसके बाद एक और लेक्चर में मैं आपका ये कंप्लीट कर दूंगी चैप्टर.
बेटा थोड़ा सा ही रह गया है, तो आप स्क्रीन पे देखो बेटा। फॉर्म्स ऑफ पावर, हाँ जी यस स्टूडेंट्स, इसके 2 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर लेफ्ट। मैं सोचती हूँ वो भी आज इसी में कंप्लीट करवा दूं। देन थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। दे कैन बी रिलीजियस ग्रुप, isn't it? Any linguistic group, अपने लैंग्वेज बेस्ड के ऊपर कोई ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। हमने पढ़ा था कम्युनिटी गवर्नमेंट जहां भी कहीं रहते हैं, दे कैन फॉर्म देयर ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन बेल्जियम, in some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. India mein, democratic, it is a democratic country. So here, some seats, they are reserved for women and socially and weaker sections also, जिनको हम बोलते हैं minorities, उनके लिए कुछ seats reserved हैं. Last year we studied the system of reserved constituencies कि few seats are reserved. 9th class में आपने पढ़ा था what are reserved constituencies for socially backward classes, उनके लिए reserved होती हैं बेटा। ये this is feature of democracy। क्या बताया था मैंने, it accommodates diversities। अगर नहीं करेंगे तो फिर democracy कहाँ है, फिर तो ये लोग protest कर देंगे। इनके पास कोई rights ही नहीं है, no equality is there। और equality भी है, right to equality भी है हमारे पास democratic country में। And last year we studied this system of reserve and in assemblies and the parliament of the country कि इनके लिए भी few seats reserved होनी चाहिए। जैसे तमिल्स, they were completely ignored and they used to think we are aliens, हम foreigners हैं, हम बाहर से आए हुए हैं, इस country के हम citizens है ही नहीं। This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. So this method is used to give minority communities a fair share in power. So इससे क्या होता है, उनको एक मौका मिल जाता है, they get a fair share in power. तो फोर्थ बेटा है इसका, power sharing arrangements can also be seen in way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. प्रेशर ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर डालते हैं ना दोज हु आर इन पावर कि नहीं ये काम आपने हमारा काम करना है, ऐसे करवाना है, हम ये चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है, दिस इज अवर विश, वी वांट दिस, मतलब ये आपने हमारा, हम प्रेशर करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स का काम क्या, दे आर एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो भी प्रेशराइज करते हैं, मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कर लेंगे, नहीं ये काम होना चाहिए, एक इशू उठा लेंगे एंड दे विल ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स बेटा। In a democracy, citizens must have freedom to choose among various contenders for power. यहाँ क्या कौन सा आ गया बेटा हमारा फीचर, क्या कहना चाहता है, पॉलिटिकल पावर है लोगों के हाथ में, वी हैव गॉट राइट टू वोट, हम वोट करेंगे जब इलेक्शंस होते हैं। एंड वन फीचर एक और भी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। हमारे कंट्री में हम कहते हैं इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड एंड वी ऑल हैव गॉट राइट टू वोट irrespective of our caste, creed, religion. इसमें बेटा वो एक आता है universal adult franchise. I hope you know the persons, the people who are above the age of 18 years, those who have completed 18 years, they have got right to vote irrespective of their caste, creed, religion, sex. Maybe a person is rich or poor, he is literate or illiterate, कोई भी है, we all have got these rights. इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिटिकल राइट्स। मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। कैसे, क्या कंपटीशन, इलेक्शंस में कंपटीशन है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कंटेस्टेंट्स दे कंटेस्ट द इलेक्शंस। कितने, हर पार्टी अपने कंटेस्टेंट्स खड़े कर, नहीं हमारी पार्टी की तरफ से ये कंटेस्ट करेगा, हमारी पार्टी की तरफ से, हर एक को वो कहते हैं ना, इस दौड़ में लगे हुए हैं कि हमने ये रेस जीतनी है, हमने अपनी सरकार बनानी है, हमने अपनी गवर्नमेंट बनानी है बेटा। सच कॉम्पिटिशन शोज दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। स्क्रीन पे देखो बेटे, सो इसका मतलब यह है कि पावर एक बंदे के हाथ में नहीं है या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं है, पावर्स इट इज डिवाइडेड। यहां भी तो डिवाइडेड ही है बेटा, हर पार्टी के कंटेस्टेंट्स दे कंटेस्ट द इलेक्शंस।
In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. लॉन्ग रन में कहता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. जब इलेक्शंस हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, गवर्नमेंट बनती है. अब भी देखो बेटा, हमारी ये जो खाली बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है ना, इट्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मिलके बनी. तो सपोर्ट दिया दूसरी जो छोटी मोटी पार्टीज ने, बीजेपी ने लिया उनका सपोर्ट, इसने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करी और बना दी अपनी गवर्नमेंट. ओनली देन, तभी तो बनती है गवर्नमेंट बेटा. समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस. कई बार क्या होता है, आपस में 2-3 पार्टीज वैसे ही मिल जाती हैं, चलो मिल गए जी हम आपके साथ, एंड दे फॉर्म द. और इस टाइप के ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? कोलिशन गवर्नमेंट. इसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. ये अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं. इनका भी इंटरेस्ट होता है, अभी हमारे लिए काम हो जाए, अपने फील्ड के लिए, वो चाहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए. They also will have a share in government power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. ये भी अपना रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट में. ये भी कुछ, इनका भी कुछ शेयर होता है बेटा. शेयर तो होता ही है. देखो कैसे हम, वी ऑल are a part of the government indirectly. We take part in decision making through our elected representatives, जिनको हमने चुना. हम उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, भी हमने तुमको वोट दिया, जिताया हमने, तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो? हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, इसके लिए काम करो आप. So in chapter 4 we shall study the working of political parties, pressure groups and so. तो ये चैप्टर तो बेटा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का हमने पढ़ना है चैप्टर 5. एक पहले चैप्टर होता है बेटा पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, वो इन्होंने काट दिया है, दैट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. ठीक है. इसके बाद अब जेंडर रिलीजन वाला आएगा चैप्टर. फेडरलिज्म है, फिर उसके बाद जेंडर रिलीजन, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, फिर उसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये हैं चैप्टर्स बेटा आपके पॉलिटिकल साइंस के. सो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया. इसमें वन मोर थिंग आई टेल यू बेटा, जब पार्टीज कंटेस्ट करती है ना इलेक्शंस, पता भी इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर होगी जी, हाँ यहाँ पर इस डेट को इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शंस होने हैं या असेंबली इलेक्शंस होने हैं, तो उससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालती हैं. व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो? इट इज सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसमें उनकी जितने भी आइडियोलॉजीज, उनके जो गोल्स हैं, जो उनका टारगेट है, वो कहते हैं ना, हम जब जीत जाएंगे ना तो हम ये सारे काम करेंगे. दीज आर सॉर्ट ऑफ प्रोमिसेस विच दे मेक टू द पीपल. तो ये सामने डिक्लेयर हो जाता है इलेक्शन मैनिफेस्टो कि ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, और जब हम जीत जाए, आप हमें मौका दे दो, हमें जिता दो, तो उसके बाद हम ये सारे काम करेंगे. वो पूरा एक लिखा होता है. एंड इलेक्शन मैनिफेस्टो के जो पॉइंट्स होते हैं, जो इसमें कंटेंट्स होते हैं, नियरली दे आर द सेम. हर एक पार्टी अपने को सबसे अच्छा प्रूव करना चाहती है. वो दिखाएंगे ना, वी आर बेटर देन अदर्स. ठीक है बेटा. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. सो प्लीज साथ साथ वीडियोस देखते रहो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहो. कई चीजें मैं आपको बताती हूँ बेटा, जो हिडन प्रिंसिपल्स होते हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स होते हैं. आई टोल्ड यू अबाउट इलेक्शन मैनिफेस्टो, फेडरल गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? सो अब इसके बाद हम फिर थोड़ा सा मैं आपको इसके समरी टाइप जैसे एक शॉट में रिवाइज करा दूंगी चैप्टर, और साइड बाय साइड बेटा आपने भी पढ़ते रहना है, फायदा होगा बेटा. बी इन टच. मैंने क्या बोला है? डोंट इग्नोर सोशल साइंस, बी इन टच. ठीक है बेटा. सो वील मीट नेक्स्ट. थैंक यू बेटा. हैव अ गुड डे.